ہم سے ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، نہ ہم سے ان کو کوئی تمنا ہے کہ ہمیں پیسے لا کے دیں، ہم یہ چیزیں لا کے دیں، ان کو کچھ بھی لالچ نہیں ہے۔ صرف ان کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کا گھر بن جائے، میرا بچہ پڑھ لکھ جائے، میرا بچہ اچھا بچہ بن جائے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں نعت رسول مقبول سنا رہے تھے محمد فہد خان صاحب۔ سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مرتے دم تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو ایک دن ابو جہل ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ اگر مجھے بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو جہل، یہ میں بتا دوں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ یہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے شعر فرمایا کہ سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ تو ناظرین، اب میں نعت رسول مقبول کے لیے گزارش کرتا ہوں قاری غلام عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل پرزور نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کرامت وہ یہ ہے کہ آپ دریا کے کنارے عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، تو ایک بڑھیا آتی تھی، وہ آ کے ہر ماں آ کے اس نے رونا، ہر ماں آ کے اس نے رونا۔ اس نے کہا بڑھیا کیا مسئلہ ہے، تو دریا کے کنارے آ کے کیوں روتی ہے؟ کہا کہ بزرگوں، یہاں پر میرے بیٹے کی بارات آئی تھی، میرے بیٹے کی بارات آئی تھی، وہ بارات میرے بیٹے کے سمیت بارات ڈوب گئی تھی، آج 40 سال گزر چکے ہیں، وہ بارات اس کے افسوس میں، اس کے دکھ میں یہاں پر آ کے رویا کرتی ہوں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں تاثیر تھی، اللہ کی کلام پڑھ پڑھ کے، قرآن پڑھ پڑھ کے، عبادت و ریاضت کر کر کے، درود پاک پڑھ پڑھ کے، اور اپنی والدہ کی بات پر عمل کر کے، کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، سچ بولنے کی برکت سے آپ نے دعا فرمائی اور وہ 40 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی واپس تار آئی۔ تو اندازہ یہ لگانے، یہ سچ کی کرامت ہے۔ آپ نے دین کا دامن اپنی والدہ کی باتوں پر، نصیحت پر عمل کیا اور دین کا دامن تھامے رکھا، تو آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اسی بات پہ آ جاتا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ سچ والی کرامت آپ اس ڈاکو کے سردار نے سنی، اس ڈاکو کے سردار سمیت جتنے اس کے ڈاکو مریدین تھے، سب نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی والدہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے ہم سے سچ بول کر اپنا مال ہماری سپرد کر رہے ہیں، اسی کرامت کو دیکھتے ہوئے سب نے حضور غوث اعظم
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हाथ पर बैत की और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करके आपकी मुरीदों में शामिल हो गए। तो असल बात हमें ये हासिल हुई सुन इस सारे वाक़े में कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें झूठ नहीं बोलना। अगर झूठ बोलेंगे तो दिल को स्याह करेंगे, सच बोलेंगे तो अल्लाह भी राजी, अल्लाह का रसूल भी राजी, माँ बाप भी राजी और उस्ताद भी राजी। झूठ बोलने से नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला हमें इस झूठ जैसी लानत से और इस झूठ जैसे फरेब से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात आप लोगों से ये अर्ज करनी थी कि हम में एक सब में, अब हम बड़े हो गए हैं, अब कम है, लेकिन पहले ये चीज़ें पाई जाती थी, लेकिन उस्तादों की तरबियत की वजह से बच जाते थे। वो ये है कि आप मुझे ये बता दें कि इस ईद पर हमने शॉपिंग की, ईद की तैयारियां की, ईद की जनाब जो जो चीज़ें हमने रिक्वायर्ड थी हमारे वालिदैन ने हमें लेके दी कि नहीं लेके दी? किस किस को नहीं लेके दी वो हाथ खड़ा करे। जिसके वालिदैन ने उसको चीज़ें लेके नहीं दी वो हाथ खड़ा करे। कोई भी नहीं है, सबको लेके दी है। बताएं, हाथ खड़ा करते हैं, कैमरा इनकी तरफ जरा घुमाए जी, हाथ खड़ा करें जिनको वालिदैन ने चीज़ें लेके दी हैं। सबको लेके दी हैं। अब हाथ नीचे करें, मेरी बात जरा तवज्जो से सुननी है। आप यहाँ पर कुरान पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ते हैं कुरान पाक, बोले यार डर क्यों रहे हैं? कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं, जहां से पढ़ने के बाद जब आप घर जाते हैं तो घर जाकर आप बासित हो जाते हैं। आप क्या करते हैं कि जी अम्मी जान मैं पढ़ के आया हूं, ऐ हुण 20 रुपए मैनूं दिओ, ऐ मैनूं 30 रुपए दिओ, ऐ मैनूं 50 देने जी, हुण तुसीं मैनूं पैसे ना देते मैं कल पढ़न नहीं जाना। ऐसा होता कि नहीं होता? कहते हैं आप लोग, अगर मैनूं तुसीं फलानी गेम ना लैके दित्ती तो मैं पढ़न को नहीं जाना। ऐसा होता है? आप लोगों ने ये चीजें खत्म करनी है। मुझे ये बता दें, आपकी वालिदा या आपके वालिद ने आपसे कभी कहा हो कि बेटा तेनों 1.5 साल हो गए मैं पैसे दिते ने, तेनों 20 रुपये सवेरे दिना, 20 रुपये दोपहर दिना, 20 रुपये शामी दिना, या 50 रुपये डेली के 3 दिना वा? या वालिदा ने कहा हो कि बेटा तुझे मैं सुबह का नाश्ता बना के देती हूँ, दोपहर का खाना बना के देती हूँ, रात का खाना बनाती हूँ, तेरे कपड़े प्रेस करती हूँ, तेरे कपड़े धोती हूँ, लिहाजा इसके एवज मुझे पैसे दो? वालिदा ने कहा? कभी कभी नहीं कहा। ए अल्लाह के बंदो, ये दो शख्सियत, वालिदैन और उस्ताद, ये दो शख्सियत ऐसी हैं कि जो बच्चे के साथ बेलौस मोहब्बत करती हैं। बेलौस क्या करती हैं? मोहब्बत करती हैं। एक किसी ने बात लिखी हुई है, उसने कहा कि एक शख्स ने अपनी वालिदा को इतना मारा कि मार मार के टुकड़े कर दिए। क्या किया? मार मार के टुकड़े कर दिए। अब वो जब मार मार के टुकड़े किए तो बोरी में डाला, फेंकने के लिए गया तो रास्ते में कहीं उसको ठेडा लगा, वो गिर गया। जैसे वो गिरा तो उस बोरी के अंदर से आवाज आई, बिस्मिल्लाह मेरे बेटे, चोट तो नहीं लगी? माँ ये है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि इतनी मोहब्बत करने वाली कोई हस्ती है इसके अलावा कोई? तो फिर हम उसका दिल दुखाते हैं। हम इधर से कुरान पढ़ते हैं, आके जनाब बड़े हाजी नवाजी बन के, सूट पहन के, साफ सुथरा लिबास पहनकर, खूबसूरत खुशबू लगाकर आके कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। घर पर हम अपनी वालिदा को जाके तंग करते हैं या तंग करके आते हैं, तो क्या वो कुरान हमारे सीने में उतरेगा? कभी नहीं उतरेगा। कुरान हमारे सीने में तभी उतरेगा कि जब हम अपनी वालिदा का एहतराम करेंगे, अपने वालिद का एहतराम करेंगे। मैं ये जानता हूँ, मुझे बच्चों की जब शिकायतें आती हैं, बच्चों के घर से पेरेंट्स आके बताते हैं कि हमें तंग करते हैं, कसम से मेरा दिल रोकता है कि यार इनको अभी होश नहीं है, इनको अभी पता नहीं है कि वालिदा और वालिद क्या है। जिनके वालिद या वालिदा नहीं है, आप उनसे जाके पूछें। एक मेरे दोस्त हैं, बड़े करीबी हैं, वो मुझसे कहा करते हैं कि यार काश क्योंकि ऐसी जगह हो या कोई ऐसा शख्स हो या अल्लाह ही कहते कि या ए बंदे तू अपना सारा कुछ दे दे, मैं तेरी माँ तुझे वापस कर देता हूँ। कहा कि मैं अपनी दुनिया, अपना दिल, दिमाग, अपनी जायदाद, अपनी गाड़ी, अपना पैसा, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, एक बार मुझे मेरा अल्लाह, मेरी माँ मुझे वापस कर दे। तो आप अंदाजा लगाएं कि माँ की ये हस्ती है। तो अभी हमारी वालिदा, हमारे वालिद हमारे सर ऊपर सलामत हैं। आज वक्त है हमें उनका एहसास करना चाहिए, उनका अदब व एहतराम करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप लोग उनके किस तरह का एहतराम करते हैं।
इस ईद पर मैं आपको बताता हूं, एक हमारे पास साहिब आए, पूरा रमजान, इस रमजान की नहीं बात कर रहा, पुरानी बात कर रहा हूं, उसका छोटा सा बेटा था, वो पढ़ता था, उसके वालिद का काम ना लगा, काम ना हुआ, काम ना चला, किसी फैक्ट्री में जॉब करता था, पैसे ना मिले, बड़ा परेशान। बेटा रोजाना देखता था कि दोस्तों की वालिदैन ने कपड़े लाके दे दिए हैं, उनकी तैयारी कर ली है, तो रोजाना उसके बेटे ने आके कहना, अपनी वालिदा से कहना, अम्मी मेरे फलां दोस्त के अब्बू ने उसको लाके कपड़े दे दिए हैं, मेरे फलां दोस्त के वालिद ने उसको लाके कपड़े दे दिए हैं, उसकी तैयारी कर दी है, उसकी शॉपिंग कर दी है, हर चीज हो गई है। अम्मी जान, मेरा वालिद मेरे लिबास, मेरी चीजें कब लेके आएगा? ईद सर पर है। उसके वालिद ने आना, आकर देखना तो बेटा सोया होता था, 1:30-2 बजे आना, सोया होता था। तो अपनी बेगम से कहना कि बेगम पैसा नहीं है, मैं इसे कैसे बताऊं, क्या करूं मैं? उसके वालिद ने कहा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। जॉब से तो उसे पैसे ना मिले, वो रात को पार्ट टाइम जॉब करता था। जब वो पार्ट टाइम ओवर टाइम जॉब करता था किसी जगह पे, उसको 100 रुपया, 150, 100, 125, वो इस तरह से पार्ट टाइम जॉब करके कहीं ना कहीं से वो कमा के लाना शुरू कर दिया, जबकि 8-10 दिन ईद में बाकी थे। बड़ा परेशान। उसने क्या किया, ईद की रात, चांद रात को जब वो पैसे हुए पूरे, अपने बच्चे के लिए वो कपड़े खरीद कर लेके आया। अब रात 2 बज रहे हैं, वालिद और वालिदा की मोहब्बत देखिए, रात 2 बज रहे हैं और आपने अपनी बीवी से कहता है, अल्लाह की बंदी इसको उठाओ और इसको पहनाओ जरा कपड़े, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा कैसा लगता है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को ये सूट अच्छा लगता है कि नहीं लगता। वालिद अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करता है कि वो 10 दिन दिन रात एक करके ना दिन को सोया ना रात को सोया, वो अपने बच्चे के लिए इतना कुछ करने के बाद रात को सूट लेके आ रहा है, चांद रात को आता है और कहता है कि बेगम मैंने सोना नहीं है, पहले इसको पहना के देखो कि कैसा लगता है। हमारा वालिद, हमारी वालिदा हमसे इस कदर मोहब्बत करते हैं, उसने अपना चैन, अपना सुकून नहीं देखा, उसने बच्चे के लिए दिन रात देखी, उसको पहना के देखा, बेटा सोया सोया देख के तो सुबह उठ के कहता है कि वाह मामा ये कौन लेके आया? कहा तेरे बाबा लेके आए। उसके हाथ देखे, हाथों पे छाले पड़े हुए हैं, पाँव देखे, पाँव पे छाले पड़े हुए हैं। आप ये अंदाजा लगाएं, हमारा वालिद, हमारी वालिदा हमारे लिए इतना कुछ करने के बाद भी हम भी कहते हैं कि माँ बाप तूने हमारे लिए किया क्या? अपना तन मन धन हर चीज हम पर वार देते हैं, फिर भी हम उनसे ये शिकवा करते हैं कि तुम लोगों ने हमारे लिए क्या किया। आप ये जानते हैं हमसे उनको सिर्फ ये चाहिए होता है कि वो हमसे प्यार से हमसे बात करे, हमसे उनको कोई लालच नहीं है, ना हमसे उनको कोई तमन्ना है कि हमें पैसे ला के दें, हम ये चीजें ला के दें, उनको कुछ भी लालच नहीं है। सिर्फ उनको ये लालच होता है कि या अल्लाह मेरे बच्चों का घर बन जाए, मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, मेरा बच्चा अच्छा बच्चा बन जाए, और इसके अलावा उनको हमसे कोई लालच नहीं होता। लेकिन खुदारा अगर आज हम उनकी इज्जत एहतराम नहीं करेंगे, मैं ये कहता हूँ हमारी दुनिया भी खराब है, आखिरत भी खराब है। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए, तो हमें चाहिए हम अपनी वालिदा और वालिद से रो रो कर माफ़ी तलब करें, और जब तक वो हयात हैं उनकी इज्जत और एहतराम करना फ़र्ज समझ लें। मैं कहता हूँ आप कुरान को हाथ लगाएं, आप दुनियावी तालीम को किसी को हाथ लगाएं, वो आपके सीने में ना उतरे तो मुझे पकड़ लीजिएगा, हर चीज़ आपके दिल में समा जाएगी, कायनात की हर चीज़ आपकी ताबे हो जाएगी। अगर ये 2 शख्सियात को आप राजी कर लेते हैं, वालिद वालिदा उस्ताद, ये 2 शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका इज्जत एहतराम करना हम पर फर्ज है। हम इन दोनों शख्सियात को छोड़कर जब दुनिया का इल्म हासिल करना चाहते हैं, दुनियावी इल्म हासिल करना चाहते हैं, दीनी इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो कभी भी हमसे ये करीब नहीं होता, दूर होता चला जाता है। आज वक्त है हमें अपनी वालिदा और वालिदा का एहतराम करना चाहिए। नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आप अपने आप को देख लीजिएगा और आज इस दिन को भी नोट कर लीजिएगा, आप हमेशा नाकाम रहेंगे। लाख आपके पास रुपए आ जाए, आपने कभी देखा होगा कि लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं लेकिन दिल सुकून नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनके वालिदैन उनसे राजी नहीं होते। क्यों? वो अपने जनाब ऐशो इशरत में लगे होते हैं। नहीं, हमें अपने वालिदैन को राजी करना है। कौन कौन अपने वालिदा और वालिद से माफी मांगकर अपने वालिद और वालिदा को राजी करेगा? ऊंची आवाज से। अल्लाह तबारक तआला से मैं दुआ करता हूँ, जिस बच्चे के वालिदैन उससे राजी हैं, अल्लाह ताला उसे दोनों जहानों की बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे इस गुलशन को भी मजीद तरक्की अता फरमाए, इस मदरसे को इस्तकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
کافر کھڑے تھے. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا اور آسیوں ہم سے ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، نہ ہم سے ان کو کوئی تمنا ہے کہ ہمیں پیسے لا کے دیں، ہم یہ چیزیں لا کے دیں. ان کو کچھ بھی لالچ نہیں ہے. صرف ان کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کا گھر بن جائے، میرا بچہ پڑھ لکھ جائے، میرا بچہ اچھا بچہ بن جائے.